की नौजवान सूझवान डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सैयदा असगर जी, मिस्टर उमर काकरू प्रेजिडेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बारामूला, सर परमजीत सिंह जी, सर कीरत सिंह जी रिटायर्ड DIG, सर हरबंस सिंह जी प्रेजिडेंट गुरु नानक देव जी मॉडल स्कूल, मैडम हरजिंदर कौर जी प्रिंसिपल, सर सलीम प्रेजिडेंट कैथलिक सोसाइटी बारामूला, सर जयदेव सिंह जी एक्स प्रेजिडेंट DGPC, सर मनजीत सिंह जी भोमा, तारिक मजलू साहब फेडरेशन प्रेजिडेंट, यासीर हलीम जी, अल्ताफ खान जी DSP हैडक्वार्टर मिस्टर मुमताज बारामूला ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਜੈਨ, ਬੌਧ, ਪਾਰਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 1977 ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਚੋਂ 47 ਤੋਂ 77 ਤੱਕ ਹਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ, ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੈਂਕ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ 79 ਜੁਲਾਈ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ 30 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਡੇ 18 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 78 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਬਣੇ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਫ ਦਾ ਏਅਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ, ਸਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 6 ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ they are now at the 3rd number in minorities। ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ 3ਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਬਾਦੀ ਘਟ ਗਈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 51 ਈਅਰ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਦੇਖੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰਲੀ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਚੜੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਦੇਸ਼ 1947 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਜ਼ਾਕਾਰ ਆਏ। 33,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ 3-4 ਲੜਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ। ਰਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 1965 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਜਿੱਤੀ,
ਤੁਸੀਂ 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਜਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਛਾਤੀ ਢਾ ਕੇ ਖੜੇ। 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਅਮਨ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੀਸ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਜੰਮੂ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਰਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੇਮ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ 15 ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, देयर आर 50 point program of the Prime Minister that is more about education and employment, and some 3 points are about the security of the minorities. ਕੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 125 ਸਕੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫॉर ਐਵਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ these schemes are available for us? मैं जो भी जाना पूरे हिंदुस्तान केरला तो लैके कश्मीर तक सारिया जगह एक ही गल होंगी है कि हमें इसके बारे में मालूम नहीं है। अगर मालूम नहीं है तो फिर इसको मालूम कौन कराए? जो धार्मिक स्थानों के लोग हैं, गुरुद्वारे के हैं, चर्च के हैं, मंदिर के हैं, मस्जिद में हैं, उनको भी ये स्कीम के बारे में पता होना चाहिए कि these schemes are available for ordinary Indians। और दूसरा, जो सोशल वर्क करते हैं उनको भी होना चाहिए इसके बारे में। तीसरा, हम इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं, इनके प्रिंसिपल साहब के बारे में बताया गया कि वॉलंटरीली सर्विस कर रहे हैं, प्रेसिडेंट भी वॉलंटरी सर्विस कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे, फीस नहीं ले रहे। इन लोगों को भी मालूम होना चाहिए तो बच्चे को पहले से तैयार कर सके कि ये स्कीम हमारे लिए अवेलेबल है। और दुनिया की कोई भी सरकार 2% से ज्यादा नौकरी नहीं दे सकती, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन हमें 80% लोगों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। उस रोजगार के लिए हमें सबको मिलकर काम करना होगा। वी हैव टू इम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट स्कीम। जहां मिलिटेंसी आती है वहां बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लेकिन आर्टिकल 29A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी क्लियरली सेज कि छोटी सी छोटी मिनॉरिटी का भी कल्चर खत्म नहीं होना चाहिए, उसकी भाषा भी खत्म नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपकी भाषा को खत्म हो रही है तो उसके लिए सरकार की जिम्मेवारी बनती है, आपके कोई ऊपर एहसान नहीं हो रहा। और इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट ऑल द मिनॉरिटी लैंग्वेजेस आर प्रमोटेड एंड देयर कल्चर इज प्रमोटेड। मल्टी कल्चरल कंट्री है और सारे देश अच्छे हैं, सारा समाज अच्छा है, उस कल्चर को कैसे प्रमोट किया जाए। मैंने कई जगह बात रखी है। एक ये भी पीछे गवर्नर साहब से बात हुई तो कहते हैं जी गवर्नमेंट पॉलिसी है जहां 20 स्टूडेंट होंगे वहां हम एक पंजाबी टीचर रखेंगे। लेकिन झगड़ा ये है कि ये 20 स्टूडेंट्स की आइडेंटिफिकेशन कौन करे? हु टू आइडेंटिफाई इट? क्या हम उनको लिस्ट दे दें कि हमारे ये 20 स्टूडेंट हैं और आ रहे हैं, हमें आप पंजाबी टीचर दीजिए? जो नया एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें यही है कि जो मदर टंग है उसमें उसको एजुकेशन देनी होगी, और उसके साथ वो 2 लैंग्वेजेस और भी सीख सकता है। जितना भी भाषा कम्युनिकेशन का सिस्टम है उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। सो ये लैंग्वेज पंजाबी खत्म ना हो, गुरमुखी स्क्रिप्ट खत्म ना हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। मेरी कल भी बात हुई थी, जो सीनियर अधिकारी हैं उससे, गवर्नर साहब से भी बात करेंगे, मैंने गवर्नमेंट से भी बात की है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मिनिस्टर हैं, उनसे भी मेरी लगातार बात होती रहती है, मेरे दोस्त हैं। तो ये तो समस्या आपकी हल होनी ही चाहिए।
और इसका जो है, यू मस्ट गेट दी स्टेटस फॉर पंजाबी लैंग्वेज, और उसकी जो एजुकेशन है वो भी एश्योर करनी चाहिए। दूसरी बात है अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ जो लोग हैं बेकार हैं। सरकार 2% से ज्यादा लोगों को, शायद 4 लाख एम्प्लॉय हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के, मुझे बताया गया। तो 4 लाख की एम्प्लॉयमेंट से हमारा काम नहीं चलेगा। इतनी बड़ी आबादी में काम तो सभी को मिलना चाहिए, और वो क्या काम हो, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट का पैसा है, उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सके। और आपका जो लोकल है, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट कौन सा है जो यहाँ बारामूला में बन सकता है, श्रीनगर में कौन सा बन सकता है? आपके पास लोकल क्या रॉ मटेरियल है जिसको प्रोसेस किया जा सकता है, या यहाँ का पुराना कल्चर क्या है जिसको हम प्रमोट कर सके? इसके बारे में भी हमें बैठ के आपको विचार करना चाहिए। ये द यंग एनर्जेटिक डेप्टी कमिश्नर इज देयर टू गाइड यू एंड हेल्प यू आउट कि हम इसको कैसे आगे ले जा सकते हैं। पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मनी इज अवेलेबल फॉर ऑल दीज प्रोजेक्ट्स, और हम इंश्योर करेंगे कि ये पैसा आप तक पहुंचे। तीसरी बात ये है कि मिलिटेंसी में एक बात होती है कि हर आदमी इज्जत चाहता है। जैसे आप कह रहे हैं, सरकारी दफ्तरों में एवरीबॉडी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए क्रिमिनल, ही शुड बी रिस्पेक्टेड। उसकी बात सुननी चाहिए, काम हो या ना हो ये बात की बात है। लेकिन जब हम जॉब में थे, शुरू किया मैंने 72 में, तो 3 बातें कही जाती थी कि इसमें कुछ नहीं लगता, आओ बैठो पियो पानी, 3 बात का मोल ना जानी। अब सरकारी दफ्तरों में यही बात होनी चाहिए, आइए बैठिए, पानी पीजिए और अपनी बात बताइए। तो मैं समझता हूँ लोगों के मन का जो गुस्सा है, जो रंज है, वो खत्म हो जाएगा। जेन्युइन प्रॉब्लम तो हर एक की हल होनी चाहिए। अब मुझे बताया गया यहाँ के 6000 से ज्यादा डेंटल डॉक्टर हैं जो एजुकेटेड हैं, उनके पास डिग्रीज हैं, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही। सरकार उनके लिए कैसे जॉब क्रिएट करे? ये हमारे सिस्टम में खराबी है। माई डॉटर इज ए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन इन यूएसए। आज से 15 साल पहले शी वॉज अ टीचर, तो शी वॉज ऑन हर फैमिली वे। उसने 6 महीने की छुट्टी ले ली। वो कहने लगे आप 4 महीने की छुट्टी लीजिए तो ठीक है, नहीं आपकी सर्विस अभी पूरी नहीं हुई तो आपको बाद में नौकरी नहीं मिलेगी, आपको 2 साल बाद नौकरी मिलेगी। फिर बाद शी सेड नो आई वांट लीव। वो छुट्टी पे चली गई। उसने 4 जगह अप्लाई किया, वहां तो किसी छोटी जॉब ही मुझे मिल जाए, लेकिन चारों जगह उसको रिफ्यूज कर दिया गया कि यू आर ओवर क्वालिफाइड, यू आर क्वालिफाइड ओनली टू बी ए टीचर, सो वी कैन नॉट अकोमोडेट यू, बट वी विल डेफिनेटली फॉरवर्ड योर एप्लीकेशन टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट। जिसने 2 साल पूरे हो गए उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट में फिर नौकरी मिल गई, और उसके बाद शी इज नाउ ए सीनियर डायरेक्टर ऑफ द एजुकेशन इन न्यूयॉर्क इन यूएसए। लेकिन हमारे क्या है, हम बड़े खुश होते हैं कि सिपाही जो है वो तो एमए पास है। दिस जॉब इज नॉट क्रिएटेड फॉर हिम, इट इज फॉर ए मैट्रिक और +2 वट एवर इज द क्वालिफिकेशन, उसके लिए बनी है। अगर हम किसी को क्वालिफिकेशन देते हैं तो जॉब भी तो उसके लिए क्रिएट करनी है। अगर हम किसी को डॉक्टर बनाते हैं तो उसको कैसे डॉक्टरी में हेल्प की जाए। वो लड़कियां आज मुझे मिली, मेडिकल कॉलेज के एग्जाम देने के लिए अगरतला गई थी, तो शी इज इन डिप्रेशन कि हमारा रिजल्ट रोक लिया गया, हमारी कोई समस्या है। चलो वो तो इंडिविजुअल है, उसको इट इज द प्रॉब्लम ऑफ फ्यू पीपल, इट विल बी सॉर्टेड, सॉल्व में हम कराएंगे इसको। लेकिन जो आपकी बेसिक समस्या है वो ऑनर एंड डिग्निटी की समस्या है। हर आदमी शान से जीना चाहता है। आपके लोगों ने यहाँ कुर्बानियां दी हैं, आपके बुजुर्गों ने इसके लिए लड़ाई की है, बहुत सारे लोग मरे हैं। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन व्हाट यू आर टॉकिंग, that one group is getting some benefit and you are being denied of those benefit of reservation, promotion and whatever the proposal is there. So ऐसा नहीं होगा, आपको भी पूरी जगह मिलेगी, आपको भी you will get all the benefit of any reservation। लेकिन ये जो हमारा धर्म है उसमें 3 चीजें नोट करने वाली है जब हम बात करते हैं।
गुरबाणी कहती है, वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। हम सभी धर्मों को मानने वाले हैं, सबका सत्कार करते हैं। और आगे एक लाइन लिखी हुई है, सब गुरपीर हमारे, सभी हमारे हैं। और इसी तरह जानो जोत ना पूछो जाति, आगे जात ना है, वहां जात पात की बात नहीं है। और गुरु साहब कहते हैं, मानस की जात सब है, एक है पहचान वो। और यही बात आगे चल के आती है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपयो, कौन भले को मंदे। सो हम सारे एक अल्लाह, एक भगवान वाहिगुरु को मानने वाले